परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी और नवाजी हुई साध संगत जीओ, आप माई भाई धनता दे योग हों जो काफ़ी समय तो लै करके चबरां तख्तां दे मालक गुरता गद्दी ते विराजमान प्रतक्ष सतगुरु सारे संसार दे संजे रहबर। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की छत्र छाया दे हेठां बैठ करके आपां सारे ही महाराज जी के चरनां दीआं खुशियां प्राप्त कर रहे हैं। गुरु नानक दे दरबार खुशियां नित नवीआं। इत्थे जिहड़े गुरु दे दर दे उत्ते आउंदे आ, गुरु दे कोल आउंदे आ, उन्हां नूं खुशियां नित नवीआं खुशियां मिलदियां ने। तां गुरमुख प्यारिओ, सतगुरु कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी उन्हां दे जीवन दी विचार चलती आ रही है। आओ कल विचार चल रही सी सिखां दीआं अरदासां अते रजोइयां अंतरजामी सतगुरु जी नूं पहुंच गईयां। उन्हां एक सिख नूं भेज के इस दर्शन आतर अते सिख नूं सद लिया। सतगुरु जी दे सिख दर्शन करके बड़े प्रसन्न ते बड़े खुश होंदे। सिख सतगुरु जी दे दर्शन करके बड़े खुश होंदे ते प्रसन्न होंदे। महाराज जी कहते दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूरन कर्म होए प्रभ मेरा। यह बनंती सुन प्रभ मेरे। जदों गुरमुख प्यारे सिख सतगुरु जी के दर्शन करदा तां निहाल हो जाता। महाराज जी कहते तन मन होए निहाल, जागुर देखा सामने। जदों गुरु नूं सामने बैठिया सिख तकदा है तां निहाल हो जाता है। तन मन, तन भी ते मन भी आखो सतनाम। हुण सतगुरु जी दे दर्शन करके बड़े प्रसन्न होया। नमस्कार कीती ते चरनां दे कोल ही बैठ गया। सतगुरु जी ने हस के पूछया, भाई सिखा साडे वास्ते की भेटा लेके आया? सतगुरु जी ने पूछया साडे वास्ते की भेटा लेके आया? सिख ने हथ जोड़ के बेनती की, महाराज मैनू एक अजीब बहुत मुला चूड़ा कितों मिलिया सी। वो मैं गुरु घर दे लायक जान के चेतों मसंद दे हथ विच पहला ही भेज दिता सी। थोड़े दिन होए ने मैं माता जीता जी दे वास्ते वो चूड़ा भेज दिता सी ते हुण दर्शन करन वास्ते ही आया कल्ले, बस होर कुछ नहीं लेके आया। तां गुरमुख प्यारिओ, गुरु जी ने सिख दी ये गल सुन के उस समय चेतो मसंद नूं सद के पुछया कि इस सिख ने तेनू साडे वास्ते जो चूड़ा दिता सी वो असां वेख्या नहीं, तू किसनों दिता है?
ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸਨੇ ਇਸੇ ਹੋਰ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਚੂੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੂੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਫਿਰ 2-3 ਦਿਨ ਉਪਰੰਤ ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਖ ਲਵੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਨੇ ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ, ਰੋਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਾਰਿਆ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਵਿਖਾਏ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਰੀਤ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੇਤੋ ਦਾ ਪਾਜ ਉਹ ਖੇਡਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੋ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਰਿਆਓ। ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਓ, ਜੋ ਚੂੜਾ ਹੈ ਵਡਮੁੱਲਾ ਕੀਮਤੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਚੂੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੂੜਾ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਕੀ ਆ, ਉਹ ਟਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਲਿਆਓ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਉਹੀ ਜੋਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਉਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਧਨ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਬੰਧਨ? ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੈ। ਕਦੋਂ? ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
अंतरजामी सी। महाराज जी कहते चवारे विच जाओ, उत्थे चूड़ा रखिया होया हीरे जवाहरां दे नाल जड़िया होया, बड़ा कीमती वडमुल्ली आ। हुक्म अनुसार चेतो मसंद दे चवारे विचों सिख चूड़ा कढ़ के ले आए। ये सुंदर चूड़ा वेख के गुरु जी दे सिख उत्ते बड़े प्रसन्न होए अते चेतो नूं पुछया कि झूठे पापी दस ये की आ, सिख झूठा है या तू झूठा है। चेतो शर्मिंदगी दा मारिया होया सिर नीवा करके बैठा रहा, बोलिया नहीं कुछ। चेतो नूं झूठ ते चोरी दी सजा महाराज जी ने सजा दी इनू। फिर चेतो नूं झूठ ते चोरी दा बड़ा दंड देण वास्ते गुरु जी ने एक कड़ाहे विच पानी अते गुड़ उबाल के उस उत्ते कड़से भर भर के पवाए। महाराज जी कहते एडा झूठा है, ये सजा दिती। तो गुरमुख प्यारे जिस नाल ओह झूठा पापी तड़प तड़प के मरिया, इस तरह पुरातन समय में सजा दी जाती सी। इसनों बुरे हाल मरदा वेख के दूसरे मसंद बहुत डर गए अते अगों तो कोई भी बेन्यायी चोरी ठगी नहीं करेगा। कन्नां नूं हथ लाया। हुण सिक्खी परखणी अते पंज प्यारे चुनने। सिक्खी दी परख करनी ते पंज प्यारे चुनने। सतगुरु जी ने संमत 1656 दी विसाखी दे मेले उत्ते इकट्ठे होण वास्ते जो सब देश प्रदेश दे सिख नूं चारे पासे हुक्मनामे भेज दिते। उन्हां अनुसार बेअंत संगतां आनंदपुर साहिब पहुँच गईयां। सतगुरु जी दे कहण ते लंगर दा प्रबंध सतगुरु जी ने दमदमा साहिब दे लागे करवा दिता। दोवें वेले शाम सवेरे दीवान सजदे अते सिख संगतां नूं गुरु जी दे दर्शन करके उपदेश सुन के अपने जीवन नूं सफला करदियां। उपदेश सुनना कादे वास्ते आ? अपने जीवन नूं सफला करन वास्ते, अपने दुखां नूं दूर करन वास्ते। महाराज जी दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहंदे आ भाई, महाराज जी कहंदे जो यह कथा सुने अर गावै, दुख पाप तै निकट न आवै। जिहड़े सरदा दे नाल भावना दे नाल गुरां दी बाणी दी कथा करदे आ जां कथा नूं सुणदे आ, महाराज जी कहंदे उन्हां दे नेड़े दुख पाप भी नहीं आउंदे। आखो सतनाम। दुख पाप तह निकट न आवै, नेड़े नहीं आउंदे, दूर रहिंदे ने। तां गुरमुख प्यारिओ बड़े आके बेनती करते ने, बाबा जी की करिए बड़ा दुखी आ, घर विच बड़ा घाटा रहिंदा है, बड़े दुखी रहिंदे हां, कोई करो मेहर करो किरपा। उन्हां नूं यही उपदेश देंदा भाई सत संगत करया करो, गुरु दे चरनां दे विच आया करो। गुरु दे चरनां विच आउण दे नाल, सत संगत करन दे नाल, सिमरन करन दे नाल मन दी इच्छा ते मन दी भावना पूरियां हुंदियां ने। आखो सतनाम। इस करके इस सतगुरु जी दे चरनां दे विच जदों असीं आके बहने आ, गुरु दे दर्शन करदे आ, संगत करदे आ,
ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਭਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ। 80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, 80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਕਲਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਨਾਲ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਸੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਦ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਵਿੱਚ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕੱਠ 80,000 ਸੰਗਤ ਬੈਠ ਗਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇਵੇ। ਇਉਂ ਆਖ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਕਿਰਪਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਿਆ? ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਜੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਥੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਆਓ ਜਿਹਨੇ ਲੈਣੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਾਰੀ 80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲਈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਰ ਨੀਵੇਂ ਕਰ ਲਏ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਉਡੀਕ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਧੀਰ ਜ਼ਬਾਨ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਵੇ। ਸੰਗਤ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਉਡੀਕ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਜਦ ਫੇਰ ਉੱਚੀ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਖੱਤਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਇਆ ਰਾਮ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਲੈ ਲਵੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੋੜਦੇ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਲੈ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ। ਜਦ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ
ਉਹਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। 80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਜਦੋਂ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੀਸ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਰੱਬ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਪਰਖਦਾ ਹੈ, ਪਰਖਦਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੀਬੀਆਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ? ਕੀ ਕਰ? ਉਸ ਸਮੇਂ 80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਮਾਈਆਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਵਿੱਚੇ, ਭਾਈ ਵੀ ਸਭ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੀਬੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਹਾਜ਼ਰਾ, ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਫਿਰ ਮਨਾਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗਣ ਦੀ। ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉੱਠ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੀਸ ਨਾਲੋਂ ਧੜ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਹੂ ਲਹੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤੰਬੂ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਲਹੂ ਚਿਉਂਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਭ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸਭ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਇਆ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਆਓ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਉੱਠ ਕੇ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਸੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਹਿਮ ਗਈ, ਡਰ ਗਈ, ਬੋਲੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਵੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਨ ਅਗਨ ਦੀ ਗਰਮੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਆਖੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਆਖੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਆਖੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਲਹੂ ਲਿਬੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਗਰਜਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੀਸ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਗ ਸੁਣ ਕੇ, ਸੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਰ ਨੀਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸਿਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਭਾਈ ਧਰਮਦਾਸ ਸਥਾਨਪੁਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ
जट सिख उठिया, उसने आप काली नाल उसनूं काली नाल फड़ के उहदा भी सीस किरपान लैके फिर झटपट बाहर आवाज़ दिती, उहदा भी सीस धड़ दे नालों जुदा कर दिता। तां गुरमुख प्यारिओ, बड़े रोब ते तेज नाल लाल अखां करके खड़े हो गए। कमजोर दिल वालियां दे मूँह, उन्हां दे मूँह दे उत्ते सिकरी आ गई। वो दीवान विचों उठना चाहुंदे सन पर जा नहीं सकते। सोचते ने जे उठांगे, ये नहीं पता महाराज ने इशारा कर दिता भी तू ही आ जा। हुण नीवियां पाई बैठे ने सारे, डरदे ने। डरदा मारा कोई भी बोल नहीं रहा, उठ के नहीं जा सकता। तां गुरमुख प्यारिओ, कमजोर दिल वाले दे मूँह ते सिकरी सा गई। वो दीवान विचों उठना चाहुंदे सन पर जा नहीं सकते। आपस दे विच बैठे बैठे नीवा मूँह करके सलाह करन लगे कि कालका दे दर्शन दा फल यह है, जिसने उल्टी पै के इन्हां दी बुद्धि होर ही कर दिती। पहला बड़े मसंद चेतो नूं तत्सीन ही मार दिता, हुण सिख दे सिर वड्डी जा रहे ने। जदों सारियां ने यह सुनिया कि कोई प्यारा सिख सिर देवे, बहुत सारे सिख जो पीछे बैठे सन अख बचा के मुसंदा नाल मिल के माता गुजर कौर जी दे कोल चले गए। माता गुजर कौर जी दे कोल चले गए, कहने लगे माता जी, गुरु जी दी बुद्धि उल्ट हो गई। उन्होंने दो सिख किरपान दे नाल वढ़ दिते हन अते हुण होर सिखां दा सिर मंग रहे ने। पता नहीं किन्ने क होर कतल कर देणगे। पहला इन्हां ने पौंटे निवास समय बाबा राम राय जी दे मसंदा नूं साड़िया, फिर पहाड़ी राजियां नाल एवें ही बैर वधा लिया, लड़ाई की। इत्थे चेतो मसंद नूं साड़ के दो होर सिख झटका दिते अते अजे होर सिख दी मंग करी जांदे आ। माता जी इन्हां अगे होर कोई पेश नहीं जा सकती, इन्हां नूं घर अंदर बंद कर दिओ। मसंद कहन लगे, कहंदे तां सिखां दा सिर वड्डी जांदे आ, इन्हां नूं कमरे अंदर बंद कर दिओ, कोई सिख इन्हां दे नेड़े ना जावे अते गुरगद्दी उत्ते अपने पोतरे नूं बिठा दो। कहंदे बाबा जीत सिंह नूं वड्डे पोतरे नूं गुरगद्दी दे उत्ते बिठा दो, इन्हां नूं कमरे दे विच बंद कर दिओ। माता जी ने उस वेले एक सिख नूं आख्या कि जाओ वेख के आओ कि कुछ हो रहा है। इधर जब तीसरी बार गुरु जी ने कहा कोई गुरु का प्यारा सिख सिर देवो, तो फिर भाई मोहकम द्वारका दा वासी जात दा सींबा उठ के हाजिर हो गया।
उसनू भी गुरु जी ने फड़ के गुरमुख प्यारे सीस धड़ दे नालों जुदा कर दिता। नेत्र लाल करके लहू नाल नुचड़दी तलवार खड़ी करके 3 वार आख्या, कोई प्यारा सिख सिर देवे। बिदरपुरी दा रहन वाला नाई जाति दा भाई साहिब चंद हथ जोड़ के हाजिर होके कहन लगा, सतगुरु जीओ मेरा सिर हाजिर है। जे ये शरीर तुहाडे कम आ जावे तां फिर होर किस कम वास्ते रखना है। इसनू गुरु जी ने श्री साहिब दे नाल इहदा भी सिर धड़ दे नालों जुदा कर दिता। तां गुरमुख प्यारिओ फिर सिख दे सिर दी मंग करन लगे। दीवान विच हलचली मच गई। बहुत सारे सिख उठ के भजन लगे ते परचा ताप करदे कि इत्थे क्यों आ गए आ। कुछ सिखी सिदक दीवान विच बैठे रहे। वो कहन लगे कि गुरु जी दी गत नहीं जानी जा सकती, एवें ही सिखां नूं वड्डी जा रहे हैं। लहू नाल भरी किरपान जदों 5वीं वार आवाज़ दिती, प्यारे सिख दे सिर दी मंग कीती तां भाई हिम्मत सिंह, भाई हिम्मत मल जगन्नाथ दा रहन वाला सी, झीवर सी। ये 5वां सिख झीवर सी। हथ जोड़ के अपना सिर देण वास्ते हाजिर होया। गुरु जी ने इस नूं भी सिर दे नालों धड़ वखरा कर दिता, झटका दिता। सब ने तलवार, सब ने बाहर तलवार दे बार दी आवाज़ सुनी। लहू धारा गुरमुख प्यारे स्टेज तो थले आ जाती वेखी। इस नाल सब ने समझ लिया कि गुरु जी ने 5 सिख मार दिते आ। हुण सतगुरु जी दे इस बार किरपान नूं साफ करके म्यान दे विच पा लिया। जदों म्यान दे विच पाया, अपने वर्गे नूं जिहड़े बैठे सी सुख दा साह आया भी शुक्र किते फिर ना महाराज जी कहण भी आओ एक सिख दी होर लोड़। श्री साहिब नूं साफ करके म्यान दे विच पा लिया अते संघासन उत्ते आसन दे उत्ते बैठ के 5 पोशाके मंगाए, 5 बाणे चोले मंगाए, दस्तारा मंगाइया अते कमर कसे मंगाए। तां गुरमुख प्यारिओ सतगुरु मेरा मार जवाला क्यों आख्या। जिहड़े धड़ दे नाल सीस जुदा कीते सी वो धड़ दे नाल एक दूसरे दा सीस ला के धड़ दे नाल रख दिता। ते सतगुरु जी ने गुरमुख प्यारिओ कल्ले कल्ले दे मूँह दे विच जल पाया। उठ भाई दया राम, उठ भाई दया राम, ते उठ के बैठा हो गया। दूसरे तीसरे चौथे पंजवें जदों जल सतगुरु जी ने पाया, उठ भाई सिखा, ते उठ के बैठा हो गया। ऐ कहते ने सतगुरु जी नूं मार जवाला भी वो मरिया नूं जिउंदे ऐ कर दिंदा। हुण जदों जीवित हो गए सारे तां गुरमुख प्यारिओ कमर कसे पोशाके मंगा के
अंदर ले जाके तंबू दे विच सारिਆਂ ਨੂੰ पंजे ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ बाणे पवा दिते, दमाले बना दिते, दस्तारां कमर कसे। कमर कसे करके बाहर ले आंदा ते अपने पास बिठाल के सब संगतां नूं संबोधन करके आखिया कि इन्हां पंजां ने गुरु अंगद देव जी वांगू सिੱਖੀ ਦਾ बीज रख लिया। ये पंज प्यारे मेरा रूप हैं। ये पंज प्यारे मेरा रूप हैं। ये बचन किया। गुरु घर दे हर एक कारज विच पंजां दी महानता होवेगी। ये पंज प्यारे हैं। आप जी दे ये बचन सुन के सारी संगत बड़ी हैरान हुई कि सानू की पता सी कि एक कौतक इन्हां ने सिੱਖੀ परखण वास्ते रचिया है। इस उपरंत दीवान की समाप्ति हो गई अते सिख संगतां अपने डेरियां नूं चली गईयां। अगे अमृत तैयार करना, अमृत तैयार करना ते तैयार करके सुकाउणा। माता गुजरी जी ने जिहड़े सेवादार पता लैण वास्ते भेजे सन, उसने आण के गुरु जी दा बहुत जस किया। उसने कहा कि झूठे कच्चे सिखां दी गुरु जी ने परख की आ। गुरु जी की चंगी गल वल नहीं वेख्या जाता। वो कारण निंदा कर रहे सन। गुरु जी ने सिखां दी परख की अते हुण वो अपना पंथ चलाउणा चाहुंदे हन। इस गल नूं सुन के माता जी बड़े खुश हुए। और गुरमुख प्यारिओ, दूसरे बैसाखी वाले दिन सतगुरु जी तैयार बर तैयार हो के उस जगह उत्ते आ गए जिथे कल सिखां नूं परखिया सी, सीस वड्डे सी। अगे दीवान लग्या होया सी, हज़ारां संगतां दा कट सी। आप जी घोड़े तो उतर के अपने आसन ते बैठ गए। जद दीवान दा भोग पिया तां आप जी ने लोहे का एक बाटा मंगवाया। मेरे हुण याद आ गई गल। एक लोहे का बाटा सर्वलोह दे विच सतगुरु जी सकिया करते सी। सर्वलोह के बाटे च सर्वलोह ऐसा बाटा है, ऐसा लोहा है जिहड़ा कई बीमारियां ठीक करदा। जिहड़ा सर्वलोह के बाटे दे विच बना के सके, जिवें मान लो भी दाल बना ली, सेवियां बना लिया, कोई होर चीज़ बना ली, वो सर्वलोह के बाटे दे विच जे तुसीं बना के सकोगे ना तां तुहाडे शरीर दीयां नेकां बीमारियां हट जाणियां ने। आखो सतनाम। गुरु बड़ा सर्वज्ञ, बड़ा सियाणा है। सर्वलोह के बाटे दे विच कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी आप सकिया करते थे। आपां ने भी हुण दो बाटे लैके आउणे ने। एक बाटे दे विच देग कढ़ के रखिया करांगे सतगुरु जी दी, ते दूसरा छोटा जिहा बाटा उहदे विच महाराज नूं भोग लवाया करांगे। ये सतगुरु जी आप ही सोझी दिंदे ने भी भाई ऐ करो, ऐ करो, ऐ करो। ये प्रातर मर्यादा है। महाराज जी कृपा करन, छेती ही दो बाटे सर्वलोह दे लैके आवांगे। तां हुण सतगुरु जी
बहुत वड्डी कृपा की सारे। इस गल नूं सुन के माता गुजरी जी बड़े प्रसन्न होए। विसाखी वाले दिन सतगुरु जी आप तैयार बर तैयार होके उसनूं उस जगह उत्ते आ गए जिथे कल सिखां नूं परखिया सी। अगे दीवान लगा होया सी, हज़ारां संगतां इकट्ठियां हुईयां। आप जी घोड़े उत्तों उतर के अपने आसन ते बैठ गए। जद दीवान का भोग पिया तो आप जी ने लोहे सर्वलोह का बाटा मंगवाया। उस विच सतलुज नदी का जल मंगवा के पाया। अपने हथ रख के भाई दया राम अते पंज प्यारियां नूं नवे वस्त्र पहना के सजा के तैयार किया गया अते तैयार करके सामने खड़ा करके खब्बे हथ नाल बाटे नूं फड़ के सज्जे हथ नाल खंडा जल विच खंडा फेरी जांदे अते मुख तो जपजी साहिब का पाठ करके अते पंज बाणियां का पाठ करके अमृत तैयार कर दिता। इतने विच जदों अमृत तैयार हो गया, इतने विच चिड़ी आ गई। गुरु जी ने उन्हां अगे ये थोड़ा जिहा जल बर्तन विच पा के रख दिता। वो चिड़ी इसनूं पी के आपस दे विच बाज दे नाल लड़न लग पई। आखो सतनाम। महाराज जी ने वचन कीता सी ना, ऐसा पंथ सजाऊंगा चिड़ियां तो मैं बाज तड़ाऊंगा, तवे गोबिंद सिंह नाम कहाऊंगा। ऐसा पंथ साजू, ऐसा खालसा साजूंगा। जदों उस चिड़ी नूं बर्तन दे विच पा के रखिया ते ओने अमृत पीता तां गुरमुख प्यारे बाज दे नाल लड़न लग पे। उन्होंने इतना युद्ध किया कि उन्होंने शरीर विचों लहू चौण लग पिया। अंत नूं दोवें ही अंत नूं गुरमुख प्यारिओ बाज नूं चिड़ी ने बाज नूं मार दिता। ये तमाशा वेख के आप जी बड़े खुश होए भी अमृत दे विच बड़ी शक्ति आ, बड़ी पावर है। महाराज जी कहते अमृत पीवो सदा चिर जीवो। ले लॉसमेंट कर दिए भी भाई कल नूं खंडे बाटे का अमृत छकाया जाना गुरुद्वारा साहिब। या कह दी भी आने वाली पूर्णमासी जी हुण गुरु नानक देव महाराज का अवतार दिहाड़ा आ रहा भी खंडे बाटे का अमृत छकाया जाना। मैनूं तो नहीं लगता कोई 5-4 जने तो वध निकले आउणगे। आखो सतनाम। 5-4 जने तो वध नहीं निकलते। मैनूं पता भी किहड़े मैनूं कहंदे ने कि बाबा जी ने खंडे बाटे का अमृत छकना। आ प्रचार तो गुरसिੱਖੀ तो प्रभावित हो गए भी असीं खंडे बाटे का अमृत छकना। 5-4 कहणगे तो वध नहीं। जे लॉसमेंट कर दिए भाई कल नूं सवेरे शराब का लंगर लगना पिंड के अड्डे दे विच। मैनूं तो नहीं लगता कोई घरे रह जाऊगा। अगला कहता बाबा जी साडा भी नाम लिख लो जी विच भी असीं ने भी लाने जी 5-4 पैग। यह जी तो बथेरे निकल आउणगे। ਜਾਂ कह दिए भी भाई थोड़ी थोड़ी पाइया पाइया भुक्की दिती जानी है एक मैंबर नूं। जिहड़े मेरे वर्गे नहीं खाते वो भी कहेंगे चल लैके रख लो किसी को बेच ही देवांगे। सतना आ देखते नहीं वोटां दे विच वो कहते आपां किहड़ा पीनी आ, चल फड़ के रखे लो किसी को बेच ही देवांगे। वो इहो जिहा भी काम कर लैंदे ने कई अपना दीन धर्म बेच दिंदे ने।
इस करके महाराज जी ने कहा अमृत पीवो सदा चिर जीवो। कहते जे सदा वास्ते जिउना चाहना है तो खंडे वटे का अमृत पी लाखो सतनाम। जिन्हों ने खंडे वटे का अमृत पीता तो गुरमुख प्यारे दुनिया अज उन्होंने याद करती है। हुण सतगुरु जी ने जदों चिड़ी वाला कौतक देखिया, ये तमाशा वेख के आप जी बड़े प्रसन्न हुए। भाई राम कुआर जी ने माता जी नूं सारी गल सुनाई कि गुरु जी ने इस तरह अमृत तैयार किया है, जिसनों पी के चिड़ी ने बाज नूं तोड़ दिता, मार दिता है। हुण तां गुरु जी अमृत सिखां नूं पिलाउणगे। जे किते अमृत पिला दिता कहंदे ये तां आपस दे विच लड़के मर जाणगे। माता जीतो जी ने सारी गल सुनी, सुन के विचारिया कि खालसा पुत्र दी साजना वास्ते अपना स्वामी पास मेरा पहुंचना भी बनता है। इस करके माता जी बहुत सारे पतासे लैके उत्थे पहुंच गए भी जिथे इन्ना भी रसा ते पतासे विच पा दीए ते नाल मठियास भी बन जाए। आखो सतनाम। एक गल याद रखियो, सतगुरु जी ने अपने सिख नूं मिठा भी बड़ा बनाया है, मठियास भी भरी है। दूसरे पासे सिख नूं भी रसी भी बनाया है, जिहड़ा एक एक सवा लख दे नाल लड़ गया। आखो सतनाम। जे किते गुरु दा सिख अपनी आई ते आ जावे ना, फिर गुरमुख प्यारे दूसरे पासे जिन्ने मर्जी खड़े होण वो किसी की परवाह भी नहीं करता। ये भी सिख दे विच गुरु जी ने भी रस्ता भरी आ। एवें नहीं भी जने खड़े ना बंदा लड़दा फिरी जावे, कोई काम ते कोई गल ते कोई टाइम ते हुंदी है गल। साडे अंदर सतगुरु जी ने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब कुछ पाया है। ये चीज़ां माड़ियां थोड़ू ने, काम माड़ा थोड़ू आ, क्रोध माड़ा थोड़ू आ, लोभ माड़ा थोड़ू आ, हंकार माड़ा थोड़ू आ। इन्हां दी जदों दुरवरतों करदे आ, गलत इस्तेमाल करदे आ, फिर गुरमुख प्यारे ये माड़ा बन जांदा। आखो सतनाम। कोई मर्जी चीज़ है, हुण मान लो मोबाइल ने हुण मोबाइल ने जिहड़े किते माड़े थोड़ू आ। अगे की हुंदा सी, चक्को मोटरसाइकिल पहला 200-300 का तेल पवाओ, फिर दिहाड़ी छड्डो, फिर किते रिश्तेदारी च मिलण वास्ते जाओ। 500 की दिहाड़ी गई तो 200 रुपये का तेल गया, तो मेरे ख्याल भी 200-250 रुपये का डब्बा भी लेके जाना पैंदा। आखो सतनाम। विच माड़ा मोटा फिर आप भी घर वाले कहते जी भुख जी लगी 4 समोसे खा लीए, फिर वो भी भाई खाना पीना पैंदा। हुण डरदा बेचारा मेरे वर्गा कहना चलो किते मेरे सिंघनी लड़ पे खवा दी। गया 1000 रुपया, 1000 रुपया गया। हुण की हुंदा, फोन लाउने मिनट च, नाले तो रोटी हत्थ च फड़दे आ, नाले खाने। और भाई ठीक आ, और परिवार ठीक आ, सारे ठीक ने, कितना फायदा हो गया। नाले तो तेल के पैसे बचे, नाले दिहाड़ी के पैसे बचे, अते नाले समा बचिया। किन्नी रामदारी है मोबाइल की, किन्नी। पर कई लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। जिहड़े फिर गलत इस्तेमाल करते हैं, फिर पती है भी की हुंदा। अखबारां टीवियां यूट्यूब फेसबुक ट्विटर के उत्ते देखदी है ना, हर चीज़ एक चीज़ सारा कुछ वधिया हुंदा, वधिया बनाई है परमेश्वर ने। जे इहदी सही ढंग दे नाल वरतों करिए, जे करोगे दुरवरतों फिर तो गुरमुख प्यारे माड़ा है।
बड़ी दुरवरतों भी हो रही है मोबाइलों की। हुण ऐसियां गल्लां ने संगत विच नहीं कर सकते, नहीं करनियां चाहीदियां। पता ही हुंदा सारिआं नूं कोई निआणा नहीं है। इस करके हर चीज़ की सही ढंग नाल सही टाइम दे नाल वरतों करनी जायज़ या नजायज़ नहीं है। तो सतगुरु कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने बहुत बड़ी बख्शिश की है। विचार चल रही सी, माता जीतो जी ने सारी गल सुन के विचारे कि खालसा पुत्र की साजना वास्ते अपने स्वामी पास मेरा पहुंचना बनता है। इस करके माता जी ने बहुत सारे पतासे लैके उत्थे पहुंच गए। गुरु जी की आग्ञा लैके उस जल विच पा दिते ते सतगुरु जी ने फरमाया तुसी बहुत चंगा कीता है, जल विच मठियास पा दिती, नहीं तो पंथ बड़े करड़े सुभाअ दा क्रोधी ते लड़ाका हो जाना सी। जिथे निमरता वाला ना उत्थे करड़ा भी बड़ा, जिवें पहलां दस्सिआ सी। अपना बगाना इन्हां ने समझना नहीं सी अते रात दिन जंग करी जाना सी। तां गुरमुख प्यारिओ कहने जो हुण तुसीं मठियास पा दिती है, इस करके आपस दे विच प्यार रखणगे। ये गल सारा जगत जानता है कि संतान स्त्री पुरुष तो बिना पैदा नहीं होंदी। बच्चे स्त्री पुरुष तो बिना पैदा नहीं होंगे। ये सारा संसार जानता। जो इस समय खालसा नादी पुत्र उत्पन्न होने समय तुसी आ गए हो, बहुत चंगा होया। सतगुरु जी ने उन्हां अपने 5 प्यारिਆਂ ਨੂੰ वारी वारी ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ के पहला 5 चूड़े छकाए, फिर 5 बार अखां नेत्रां 'ਚ पाए, छिटे मारे अते 5 चूड़े वारी वारी सारे दे केसां दे विच पाए। हर एक ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ चूड़े नाल महाराज जी कहते सी बोल सिखा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी। अज सिखा ने फतेह दी ही नास मार दिता। फतेह बुलाउणी भुल गया होना जी। कई बार फोन करते नाले पाठी होंदे ने जां कोई गुणी ज्ञानी होंदे। एक तो बंदा आम होंदा चलो भाई नहीं पता, बंदा कहंदा अनजान आ। जे फतेह बुलाने वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह, कई कहते खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। खालसे तो शुरू करते हैं फतेह। वाहिगुरू जी का वाहिगुरू जी का एक कट्टे दिता, खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इन्ना क कई जान के तुर जाते जे फतेह बुलाते वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू फतेह 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 बस दूरों ही करनगे। सारी शब्दावली का नाश मार दिता। बोल बाणी बिगड़ गई आ। अगे आप कहते जी भूआ जी, बेबे जी, मां जी, हुण की शब्द वरतदे आ अजकल की जिहड़ी पीढ़ी है? मोम। लै मां नूं मोमे बनाता। मोम। असीं चले गए इधर राजस्थान के नेड़े पिंड पैंदा सी। असीं जदों गए वो भाई एक छोटी जी बच्ची आई। असी कहा बेटा कौन ना करे? कहती भूई। मैं डर गया, मैं किहड़ी चीज़ आ गई। मैं फिर पूछया, कहती भूई। ले भूआ जी कितना वधिया शब्द, भूयो बनाता पता नहीं की शब्द अर्थ बनता होना। इस करके ये शब्द बिगाड़ दिते ने सारे। ना साडा खाना चजदा रहा, ना साडा बाणा चजदा रहा, ना साडी रहत मर्यादा रही, सारी ही नाश में रही। इस करके भाई बहुते दुखी है।
ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ जी वाहिगुरु माता सुंदरी माता जीता जी ने पतासे पाए ते अमृत तैयार होया, मिठास पा दी। महाराज जी कहते भाई जिहदे सिर दे विच अमृत पाउंदे ने सिखाउंदे ने, बोल सिखा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस तरह गुरमुख प्यारिओ आप जी कहते पिछों फिर अमृत सिखाते जाते नाल नाल। हुण सिक्खी दी परख सिक्ख्या वाहिगुरु सिक्ख्या देनी, जदों खंडे बाटे दा अमृत सिखाते आ फिर नाल सिक्ख्या दिंदे आ। हुण सिक्ख्या महाराज जी कहते इस तरह अमृत सिखा के फिर आप जी ने 5 प्यारिਆਂ ਨੂੰ सिक्ख्या दिती कि अज तो तुसी सिंह सज गए हो, तुहाडी पिछली जात पात मिट गई है, अपने नाम दे नाल सिंह लाओ। सिंह पद लाउणा अज तो तुसी दयाराम जी नहीं, भाई दया सिंह जी, धर्मदास नहीं, भाई धर्म सिंह जी, भाई मोहकम चंद नहीं, भाई मोहकम सिंह जी, भाई साहिब चंद नहीं, भाई साहिब सिंह जी, हिम्मत सिंह जी। इस तरह गुरमुख प्यारे फिर सिंह नाम शब्द महाराज जी ने लाया। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी, साडा अमृतधारी सिख नड़ी मार, हुक्का तंबाकू पीण वाला कुड़ी मार, और गुरु दे नाम ते माया लैण वाला मीणे मसंद पिरथी चंद, गुरु मनण वाले धीर मलीए अते राम रहीए, धीर मल ते राम राय नू गुरु मनण वाले नाल मिल वर्तन ना करे। ये महाराज जी ने सख्त शब्दां दे विच कहा सी भी इन्हां दे नाल मेल मिलाप ना रखियो। कुड़ी मार जेड़े कुड़ियां नूं कुखां दे विच मार दिंदे ने, महाराज जी कहंदे मेरा सिख उहदे नाल मेल मिलाप ना रखे। तां गुरमुख प्यारिओ महाराज जी कहंदे इन्हां नाल मिल वर्तन नहीं रखना, पर इस्त्री तथा पुरुष नाल कुसंगत माड़े कर्म ना करे। अपनी किरत बिरत दी कमाई विचों गुरु नवित दसवंध कढे। उदों क्या सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने भी मेरा सिख जिहड़ा वो गुरु नमित दसवंध कढे, जिहड़ा गुरु दे नमित दसवंध कढेगा महाराज जी कहंदे कदे भी दुख नहीं पावेगा। खुद सतनाम, ये गुरु दे बचन ने भाई, लिखे हुए ने, कोई लवों नहीं गल्लां बातां बनाई हुई। जे साडी 10,000 रुपया तनख्वाह बनती है ना, तो 9,000 रुपया असीं वरतना ते 1,000 रुपया गुरु घर वास्ते कढ़ना, गुरु वास्ते कढ़ना। जे नहीं कढ़ोगे महाराज जी कहते बाबे के जो दाम न दे हैं तिनसे फिर बाबर के ले आ। फिर माफ कर दो डॉक्टरां दे कोल, वकीलां दे कोल, होर उरा अपना ठाणे ठप्पियां च लग जाने ने, लै लेने ने। उन्हें एक महाराज ने दसवंध अपना कढ़ा लेना, भावें किहड़े रूप च। जे निवरता नाल गुरु के सिख हो के, सिंह सिंघणियां हो के गुरु का दसवंध कढ़ोगे, कदे भी किसी तरह की तत्ती हवा भी नहीं लगेगी। आखो सतनाम। ये मेरे वचन नहीं भाई, गुरु कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के वचन ने। महाराज जी कहते गुरु निमित्त दसवंध देवो अते वंड के सको। गुरमुखी अखर आप पढ़ने ते अपनी इस्त्री पुत्र नूं पढ़ाने। एक अकाल पुरख तो बिना किसी देवी देवते पीरा पकंबरा नूं मड़िया मसाणिया कबरां नूं नहीं मनना। महाराज जी कहते सदा शास्त्र धारी रहे मेरा सिख है जिहड़ा, ये सिखीए। उपरंत फिर आप जी ने सिखी दी रहत दसी ते 5 ककार केस कड़ा कृपान कंगा ते कसहरा धारण करनी। बाणी का 2 वेले सवेरे ते शाम नूं पाठ करना, जे पाठ नहीं करना तो सुनना।
ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਦੱਸੇ, ਸਾਰੀ ਰਹਿਤ ਵੈਦ ਦੱਸੀ, ਚਾਰ ਕੁਰੈਤਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਚਾਰ ਕੁਰੈਤਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੁੱਠਾ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੰਬਾਕੂ ਨਾ ਪੀਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਦੇ। ਜੇ ਹੋ ਜੇ ਅਚਨਚੇਤ ਕੋਈ, ਹੋ ਜੇ ਅਚਨਚੇਤ ਕੋਈ ਅਚਨਚੇਤ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮੰਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਬਾਲੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾ ਦਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਹੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁੱਧ ਸਪੱਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਏ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਦਸਵੀਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਦਸਵੀਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ, ਬਾਕੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਖੀਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਕੰਮ ਐਤਕੀ ਦਸਵੀਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਧੂਮਾਂ ਧਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਤੇ 3 ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ, ਜਲ ਪਾਣੀ, ਜੋ ਵੀ ਬਦਾਣਾ ਪਕੌੜੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਜਲ ਪਾਣੀ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਦਿਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਖਾ ਦਿਓ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਣਾ, ਬਦਾਣਾ ਪਕੌੜੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੰਗਰ, ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ, ਜੀ ਆਇਆਂ, ਧੰਨਵਾਦ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਦਸਵੀਂ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਐਤਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੀਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚਲੋ ਦਸਵੀਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਜੋ ਅੱਜ ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਆਓ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ।
ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਦੇ ਗੱਲ करके फिर आपो अपने करो विहार करने। वो एक अपने रात होर लियांदी बनाई आइटम, वो परे सामने पई है नीले ਜਿਹੇ रंग की। ये साउंड रखा करना, ਜਿਹੜੇ स्पीकर अपने साउंड ने ये गर्म हो जाते हैं, मचन वाले होंगे, अग लगन का खतरा होंदा। वो फिर जाली जूली लिया ला के पूरी मेरे ख्याल 15,000 रुपये खर्चा आ गया होना, वो तैयार करवाई है। सो सामने अपने पई है। सतगुरु जी इस तरह के आपे नवे नवे कौतक करी जाते हैं, पता नहीं की कराना महाराज जी ने सेवावां संगतां तो। सो सारिया संगतां दे सहयोग दे नाल हुंदा है ते आप चढ़दी कला विच रहो। आओ श्लोक दे विच, श्लोक पवन गुरु पानी पिता, माता तरत महता, दिवस रात दो दाई दाया, खिलै सगल जगत, चंगियाइयां बुरियाइयां, बचै धर्म दूर, कर्म ही आपो अपनी, के नेड़े के दूर, जिनी नाम ते आया, गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले, केती छुटी नाल, जिनी नाम ते आया, गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले, केती छुटी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो ठाकर